સુરતના લોકો છે એ મુદ્દાઓ નહીં પરંતુ વિકાસ જોઈને વોટ આપશે. દેશને વિશ્વગુરુની ઓર લઈ જનાર આપણું શીર્ષ નેતૃત્વ છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ. મોદીજીના નેતૃત્વમાં જે પણ કામ થઈ રહ્યા છે એ દેશને એક દુનિયાની સામે એક બહુ મોટી એ બનાવ્યું છે, દેશનું બહુ મોટું વેલ્યુ બનાવ્યું છે. बीजेपी का एक ही एजेंडा सबसे बढ़िया है कि हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद. वो चाहे राम मंदिर की बात आप देख लीजिए, राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, संपूर्ण मंदिर नहीं बनाएंगे लेकिन उद्घाटन करेंगे. और हमारे आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के जाबाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिलकर उसका उद्घाटन किया और हम नई दिवाली बनाए और जनता ने उनके साथ मिलकर नई दिवाली बनाई. 30 વર્ષથી અહીંયા બીજેપી સરકાર છે ને લેબરો માટે કઈ ઉદ્યોગપતિઓ કર્યા નથી. આજે તમે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં જાઓ, સંચા ખાતેની સોસાયટી, અહીંયા ટોયલેટ બાથરૂમ નથી. મોદીજી આખા હિન્દુસ્તાનમાં શૌચાલય બનાવી દીધું, પણ આ કઈ કારીગરોને કઈ ખાતામાં એના શૌચાલય નથી, કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોસાયટીમાં શૌચાલય નથી. 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીનો માહોલ જામી ચૂક્યો છે. ચૂંટણીના મેદાને ઉતરવાળા નેતાઓ ચૂંટણી પ્રચારમાં લાગી ગયા છે. ત્યારે આપણે ઉપસ્થિત છીએ નવસારી લોકસભા વિસ્તારમાં, જ્યાંથી બીજેપીના કેન્ડિડેટ CR પાટીલ છે અને CR પાટીલ જે ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના અધ્યક્ષ પણ છે અને નેસદ દેસાઈ કોંગ્રેસના કેન્ડિડેટ છે. તો કેટલાક લોકો આપણી સાથે છે, એની સાથે વાત કરીશું, જાણીશું કે લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને તે શું કહી રહ્યા છે, શું માની રહ્યા છે. શું નામ છે આપનું? નરેન્દ્ર ચૌધરી. નરેન્દ્રભાઈ, આ વખતે શું મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં છે જેને લઈને વોટ લોકો આપશે? અમારા જે અહીંયાના જે લોકો છે, સુરતના લોકો છે, એ મુદ્દાઓ નહીં પરંતુ વિકાસ જોઈને વોટ આપશે. જે સુરતમાં 20 વર્ષનો જે વિકાસ દેખાઈ રહ્યો છે, તમને રોડ, રસ્તા, ડ્રેનેજ ને બધું ડેવલપમેન્ટ અહીંયા તમને દેખાઈ રહ્યું છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ને એ બધું જોઈને અહીંયાની પબ્લિક વોટ આપશે. અને ગયા વર્ષના જે ચુનાવ હતા એના કરતાં સારું મતદાન થશે અને સારું રિઝલ્ટ ફરી અહીંયા ભાજપને મળશે. તો વિપક્ષની ભૂમિકા શું દેખાઈ રહી છે ભાજપની સામે? કારણ કે નવસારીની આપણે વાત કરીએ, ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ CR પાટીલ પોતે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. એમાં વિપક્ષ દિવસ પ્રતિ દિવસ કમજોર થતો જઈ રહ્યો છે. એનું કારણ છે કે વધારે પડતા લોકોનું જે ઝુકાવ છે બીજેપી તરફ જઈ રહ્યો છે. લોકો ની જે વિચારધારા છે એ બદલાઈ રહી છે. આજે જ્યારથી મોદીજી પ્રધાનમંત્રી બન્યા એના પછીથી તમે જોશો કે કોંગ્રેસ કે કોઈ પણ વિપક્ષી પાર્ટીઓ એ બધી ખાલી થઈ ગઈ છે. બધા લોકો ભાજપ તરફ એટ્રેક્ટ થવા લાગ્યા છે, કેમ કે જે મુદ્દાઓ છે, રાષ્ટ્રીય સ્તરના મુદ્દાઓ છે. હું માનું છું કે લોકતંત્રમાં ઘણી વખત સરકાર બધું કરવામાં સફળ નથી હોતી, પણ જે મેઇન મુદ્દાઓ છે એ અમને લાગે છે કે અમારી જીવનમાં અમે જોયા છે ને અમે બહુ પુણ્ય કમાયું છે. જેમ કે એક તો ધારા 370 છે જે કાશ્મીરમાંથી હટી છે, અને બીજું રામ મંદિરનો મુદ્દો છે. આ બધા મુદ્દાઓ છે ને, આ 17 વર્ષથી પેન્ડિંગ મુદ્દાઓ હતા, જે ભવિષ્યમાં અમને લાગે છે કે જો બીજેપી નહીં હોત તો આ મુદ્દાઓ સોલ્વ નહીં થાત. બિલકુલ. બીજા એક ભાઈ છે, શું નામ છે આપનું? દીક્ષિત ત્રિવેદી. દીક્ષિતભાઈ, શું માની રહ્યા છે વખતની ચૂંટણીમાં? શું મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં હશે? આપને પણ ધ્યાનમાં શું હશે? અને વિપક્ષ કેટલો મજબૂત છે? મુદ્દાઓ જોવા જઈએ તો આ વખતનું જે ઇલેક્શન છે એ ઇલેક્શન વિકાસની રાજનીતિ પર જ છે. વિકાસ જે દેશનું જે કંઈ ડેવલપમેન્ટ છે, દેશને વિશ્વગુરુની ઓર લઈ જનાર આપણું શીર્ષ નેતૃત્વ છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ. મોદીજીના નેતૃત્વમાં જે પણ કામ થઈ રહ્યા છે એ દેશને એક દુનિયાની સામે એક બહુ મોટી એ બનાવ્યું છે, દેશનું બહુ મોટું વેલ્યુ બનાવ્યું છે. જ્યારે એક આની પહેલાંના વડાપ્રધાનો હતા તો એ એટલી ગણતરી નહીં હતી દુનિયાની સામે કે ભાઈ આ ભારત દેશનો વડાપ્રધાન છે. પણ અત્યારે જો મોદીજી નીકળે અને મોદીજી દેશને પણ અહીંયા લાવ્યા, જેમ કે G20 કર્યું, G20 એમને આખા ભારતના દરેક રાજ્યમાં કર્યું. જો બીજા વડાપ્રધાનો તો કોઈ એક રાજ્ય સીમિત રાખતે. તો નરેન્દ્રભાઈ પુષ્કળ કામ કર્યા છે. એમના નેતૃત્વમાં નીચે પણ લોકો જે કંઈ નેતાઓ છે, અમારે જે અહીંયા લોકલ નેતૃત્વ છે એ પણ પબ્લિકની વચ્ચે સતત રહેતું હોય છે અને સતત કામગીરીમાં રહેતું હોય છે. જેમ કે કહેવાય ભારતીય જનતા પાર્ટી 108ની જેમ કામ કરે છે. તો બીજેપીને સાથે વરેલા લોકો છે. અહીંયા અમે તો શહેરમાં રહીએ છીએ, ગામડાથી આવેલા લોકો છીએ. અહીંયા જે કંઈક વિકાસ દેખાઈ રહ્યો છે એ વિકાસ શહેર સીમિત નથી રહ્યો, ગામડાઓ સુધી પણ પહોંચ્યો છે. ગામડામાં રોડ રસ્તા નહીં હતા, જે પ્રધાનમંત્રી સડક યોજના અટલજીનું સપનું હતું. પાણી હતું કે ભાઈ ગામડે પાણી મળવું જોઈએ, તો શહેરમાં તો પાણીની સુવિધા થવાની જ હતી, પણ ગામડાઓ સુધી પહોંચ્યું તો ગામડાઓનો વિકાસ થયો છે. એટલે ગ્રામ્ય વિકાસ પર પણ બહુ મોટું ફોકસ રહ્યું છે. એટલે મને એવું લાગે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી આ વખતે પૂર્ણ બહુમત મેળવી શકે એમ છે, આવી મારી આશા સાથે હું કહી શકું છું. શું નામ છે આપનું? जी, मेरा नाम श्रेयांश दुबे है। श्रेयांश, क्या मानते हैं इस बार के जो चुनाव लोकसभा के हैं, इसमें क्या मुद्दे चल रहे हैं आपके दिमाग में, लोगों के दिमाग में क्या लग रहा है?
मुद्दे कुछ नहीं है, विकास के मुद्दे हैं जो गुजरात में पूर्ण रूप से हुआ है। बाकी पूरे भारत में जो विकास के कारण थोड़े बहुत रुके हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष ये जो चुनाव हो रहा है इसमें आएंगे तो पूर्ण रूप से हमें उम्मीद है कि सरकार अच्छे निर्णय लेंगी और विकास के कार्य को करेंगी। તો બિલકુલ આ તમામ લોકો પોતપોતાની વાત મૂકી છે. વધુ આપણી સાથે બીજા જણા છે એની સાથે વાત કરીશું. શું નામ છે આપનું? शशिभाई दुबे। शशि भाई, क्या लग रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में किन मुद्दे पे लोग मतदान करेंगे और आप क्या मानते हैं? वैसे बीजेपी जो है हमेशा मुद्दा तैयार करती है। इनका मुद्दा होगा राम मंदिर और मस्जिद का। विकास के मुद्दे पे कोसों भागने वाले हैं। महंगाई के मुद्दे पे इन्हें बात नहीं करनी है। नौकरी के मुद्दे पे अगर आप बात करें तो 60% लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। गवर्नमेंट की जो ऑफिसें खाली हो चुकी हैं, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जो चले गए हैं, वो जो टेबल और कुर्सी खाली रहती है, लोग काम के लिए जाते हैं, जगह जगह लाइनों में खड़े हो जाते हैं, पूरा दिन बीत जाता है, वो काम नहीं कर पाते। और बीजेपी का एक ही एजेंडा सबसे बढ़िया है कि हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद। वो चाहे राम मंदिर की बात आप देख लीजिए, राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। संपूर्ण मंदिर नहीं बनाएंगे लेकिन उद्घाटन करेंगे। और हमारे आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के जाबाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिलकर उसका उद्घाटन किया और हम नई दिवाली मनाए और जनता ने उनके साथ मिलकर नई दिवाली बनाई। उसके बाद उन्होंने बाबा विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर तैयार किया, वहाँ उस मंदिर में भी उन्होंने एक नई दिवाली मनाई। हम चुनाव के पहले 4 दिवालियाँ मना चुके हैं, पाँचवां दिवाली पुनः मनाने की तैयारी है। कौन मनाएगा ये कह नहीं सकता कि ये कांग्रेस में विकास तो हुआ, विकास कहाँ हुआ? विकास की खाली बातें होती। विकास का गाथा टेलीविजन के स्क्रीन पे, विकास की गाथा एडवर्टाइजमेंट में, बड़े बड़े होर्डिंग पे, पेपर के न्यूज़पेपरों में। ये अब जब भी आप कोई पेपर पढ़ने जाएं तो अगर फ्रंट पृष्ठ आप देखते हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट होगा, वो गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट होगा। और कितने छोटे मोटे ऐसे पेपर वाले और चैनल वाले थे जिनके एडवर्टाइजमेंट को बंद कर दिया गया है। आज वो बेचारे भूखमरी के कंगार पे आ गए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी थिंकिंग जो है और हमारी थिंकिंग में और जनता की थिंकिंग में बड़ा फ़र्क है। जनता को सुविधा चाहिए, जनता को चाहिए कि हमें अगर बनारस जाना है यहाँ से तो हमें टिकट मिल जाए, हम चले जाएं। भले 72 आदमी की कोच में हम 150-250 आदमी जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जा सकें और रेवेन्यू सरकार को दें। अभी आपने देखा होगा जो हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चली उसमें 5 करोड़ रुपये रेवेन्यू आया। एक दिन में रेलवे डिपार्टमेंट के रेवेन्यू 5 करोड़ रुपये हुए। इतनी यहाँ से हॉलीडे ट्रेनें चली हैं। तो कहने का मतलब है कि जहाँ 70 आदमी 72 आदमी की जगह होती है तो हम 250 जाते हैं, तो ऊपर का जो पेनाल्टी हम भरते हैं, बड़े खुशी से पेनाल्टी भर देते हैं, मुझे सुविधा नहीं मिलती। वो पेनाल्टी भरते तो सरकार के खाते में जाती है ना। जब रेवेन्यू जाता है तो हमारा विकास होगा। दूसरी बात, एक व्यापारी एकदम परेशान है। भयभुक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भयभुक भ्रष्टाचार की बात लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। व्यापारी इतना परेशान है, आप चैनल के माध्यम से देखेंगे, आप तो ज़्यादा जानकार हैं, आपको रोज़ हर जगह जाना पड़ता होगा। तो आज मार्केट की, टेक्सटाइल मार्केट की स्थिति यह है कि मार्केट बंद के कंगार पे है। आपको मार्केट की जो सेठिया जो गद्दी पे बैठते वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। उनका वर्कर जाएगा, ऑफिस चालू कर देगा, दुकान चालू कर देगा, वो दिन भर बैठा रहेगा, धंधे हैं नहीं। जब मार्केट मंदी हुआ तो आप यहाँ के टेक्सटाइल यूनिट जो है, टेक्सटाइल मिलें जो हैं, पंडितरा GIDC हो, सचिन GIDC हो, चाहे वो पलसाना GIDC हो, हर जगह की GIDC पे असर पड़ा। सांचा मशीन जो लोगों ने लगा के बैठा है उनके ऊपर असर पड़ा, क्योंकि कारीगर बेचारे आज मजबूर हैं वो गांव जाने के लिए। उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है कि वो गांव जाएंगे। जब यहाँ जो रोजगार होता तो गांव क्यों जाते? आखिर इतने महीनों में उन्होंने काम किया ना। लेकिन ये मुद्दे क्या चुनाव में काम करेंगे? क्या लग रहा है कि मैं बात चुनाव की है तो चुनाव ये मुद्दे के विकास हुआ ऐसा लोग कह रहे हैं? मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले ही कह दिया कि जहाँ राम की बात आएगी, राम लला जी कब आए अयोध्या, ये तो आपको भी मालूम होगा, हमें भी मालूम होगा, हिंदू धर्म के सब लोगों को मालूम है। राम लला जी अयोध्या आए तो शादी के बाद अयोध्या लौटे थे ना, तो रामलला थोड़ी थे। जब शादी हो जाती तो रामलला कहाँ कहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी। और ये चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हमारे आदर्श प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको अधूरा ही उद्घाटन कर डाला। ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ा इतने सालों बाद बना तो बना तो सही। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो भी मुद्दा कोर्ट का था। उस समय राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, ये आप जानते हैं अच्छे। बनवाने के लिए कोर्ट जब परमिशन देती है तो हम बनवाते हैं भाई। उस समय में सत्ता में नहीं था। कांग्रेस जब करती है कांग्रेस जब करती है जो कार्य वो कहती नहीं। हम आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से, मुझे नहीं कहना चाहिए, आज शर्म लग रही है। एक जमाना था जब जाफर शरीफ रेल मंत्री थे तो उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ से कोई ट्रेन नहीं थी। उस समय हम लोग जो वर्णन थ्रेरा डाउन सूरत भुसावल पैसेंजर में जाते थे, हम लोग यहाँ भेड़ बकरी की तरह, और दिन भर भुसावल रहते थे, शाम को वहाँ से ट्रेनें मिलती थी। उस समय यहाँ से 4-5 प्रतिनिधिमंडल गया और मिला जाफर शरीफ जी से। राजीव गांधी जी ने उस पर पर्सनल विचार करके कहा कि भाई 2 कोच उत्तर प्रदेश वासियों को दे दिया जाए बनारस के लिए। यहाँ से 2 कोच चालू हुई। उसके 2 महीने बाद यहाँ इलेक्शन था, राजीव जी यहाँ आए थे, MTV कॉलेज ग्राउंड में मैदान में उनका प्रोग्राम था। हम सर्किट हाउस में मिले, हमारा 11 प्रतिनिधिमंडल मिला। हमने उनसे चर्चा की, साहब आप ये घोषणा करिए कि हमने यूपी वासियों की ट्रेन समस्या देखते हुए 2 ट्रेनें 2 कोच हमने एक्स्ट्रा बढ़ाई है, जो सूरत भुसावल सब पैसेंजर में। मेरी बात सुनिए, 11:25 पर सूरत से खुलती थी और दूसरे दिन भुसावल पहुंचती थी। वहाँ से काशी दादर वाराणसी जाती थी, उसमें ज्वाइंट होकर बनारस जाती थी।
उससे हम लोग यात्रा करते थे, तो हम लोगों के लिए थोड़ी सुविधा तो हुई। वो करते थे लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आज वो सरकार फेल हो गई। आप लोग यही करते 70 वर्षों में क्या किया? 70 वर्षों में जो कांग्रेस बनाई इन्होंने बेचा। देख लीजिए रिकॉर्ड, क्या बाकी रह गया? अदानी का ट्रेन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जहां देखिए सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जा रहा है। इनके पास बचा क्या कि विकास की मुद्दा की बात करेंगे? विकास कहां से रह गया? ये एडवर्टाइज की बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तो सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने जो गाँवों में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो बोर्ड थे, उसको निकलवाने में करोड़ों रुपए कांग्रेस ने खर्चे कर दिए। आज ये जो हमें बता रहे हैं, बीजेपी को बता रहे हैं कि एडवर्टाइज कर रही है, तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया? करोड़ों रुपए सिर्फ वो ग्राम सड़क योजना के बोर्ड निकालने में इन्होंने, सोनिया गांधी सरकार ने उस समय का खर्चा कर दिया था। और बात कर रहे हैं कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, तो अरे भाई राम मंदिर बनवाया क्यों नहीं? हम तो तुम्हें ही सर पर बिठा के घूम लेते। हमारा तो मुद्दा ही यही थे। हम भारत देश के लोग हैं, हमें हमारी संस्कृति, हमारा धर्म बहुत अति प्यारा, अति प्रिय है। अगर आप लोगों ने राम मंदिर बना दिया होता तो हम तो आपको पलकों पर बिठा कर रखते। क्यों नहीं बनाया राम मंदिर? क्यों कश्मीर को इतने वर्षों तक हमसे दूर रखा? आज ये कांग्रेस की सरकार में देश का ये हाल था कि वहां लाल चौक पर हमारे देश का तिरंगा हम नहीं लहरा सकते थे। ये हाल वहां था। हाँ होगा, ये सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं, कैसा विकास है वो नहीं, लेकिन आज जो इतने बड़े बड़े जो मुद्दे थे, जो हमारे दिल पे लगे हुए मुद्दे थे, वो तो सोल्व हुए। हमें हमारा मंदिर तो मिला, हमें हमारा कश्मीर तो मिला। भाई आज 70 सालों में आप लोगों ने क्या किया? हाँ, ऊपर से ये कह रहे हैं कि ये योजना कांग्रेस की थी, ये योजना मानते हैं कांग्रेस की थी, लेकिन लागू तो बीजेपी के आने के बाद की गई। इतने सालों में योजना तक लागू नहीं। इतना भ्रष्टाचार था कांग्रेस सरकार के समय पर कि जो योजनाएं ऊपर से निकलती थी वो लोगों तक पहुंचती नहीं थी। वो योजनाएं आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं। अब भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार ऐसा है कि विश्व में भ्रष्टाचार हमारे विचारों में, कोई सरकार में नहीं है। भ्रष्टाचार हमसे शुरुआत होती है, सरकार नहीं करती। आज मैं मोटरसाइकिल लेके या गाड़ी लेके जा रहा हूँ, हमें पुलिस वाला पकड़ता है तो हम ही हमारे लोगों को या पुलिस वालों को कहते हैं कि साहब 2-5 पैसे लेके छोड़ दो। क्यों हम दंड नहीं भरते? भ्रष्टाचार की शुरुआत तो हम कर रहे हैं, सरकार थोड़ी ना कर रही है। हम दे रहे तो सरकार ले रही है। आपका नाम क्या है? શું નામ છે? રોશન મિશ્રા। રોશનભાઈ, શું કહેશો તમે? આમ મામલે કે 2024ની ચૂંટણી છે, આ બધા લોકો પોતપોતાની રીતે વાત કરી રહ્યા છે, શું કહેશો આપ? હવે તો પરિવર્તન થવું જોઈએ, કેમ કે હવે 30 વર્ષથી અહીંયા બીજેપીની સરકાર છે અને જે નવસારી લોકસભાના કેન્ડિડેટ છે એના સામે જે કોંગ્રેસના કેન્ડિડેટ છે તે એકદમ જમીની કાર્યકર્તા છે અને ઇન્ટુકના પ્રેસિડેન્ટ. આ સુરત લેબરોની સિટી છે, અહીંયા 90% લેબરો વસવાટ કરે છે, જે કે ઔદ્યોગિક સિટી છે, એટલા માટે અહીંયા વર્કરો વધારે હોય. મુદ્દાઓ શું કામ કરશે? મુદ્દાઓ કયા મુદ્દાઓ રહેશે જેને ધ્યાને લઈને વોટ આપશે? હવે મુદ્દાના મુખ્ય મુદ્દા એ છે કે આજે 30 વર્ષથી અહીંયા બીજેપી સરકાર છે ને લેબરો માટે કઈ ઉદ્યોગપતિઓ કર્યા નથી. આજે તમે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં જાઓ, સંચા ખાતેની સોસાયટી, અહીંયા ટોયલેટ બાથરૂમ નથી. મોદીજી આખા હિન્દુસ્તાનમાં શૌચાલય બનાવી દીધું, પણ આ કઈ કારીગરોને કઈ ખાતામાં એના શૌચાલય નથી, કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોસાયટીમાં શૌચાલય નથી. ગુજરાત એક એવું સ્ટેટ છે જે અહીંયા 12 ઘંટાની નોકરી હોય, અહીંયા કારીગરોને અંદર જવા માટે ટાઈમ હોય, બહાર નીકળવા માટે કઈ ટાઈમ નથી. તો એ મુદ્દાઓ કામ કરશે ચૂંટણીમાં? 100% કામ કરશે, 100% કામ છે. કેમ કે જે કાંગ્રેસના કેન્ડિડેટ ગાંધી વિચારધારાને છે, ગાંધી જેવું વેશભૂષા ધારણ કરીને પબ્લિકને બચ્ચે જાય તો જરૂર ઇફેક્ટ પડે. अपना नाम शो? मेरा नाम बलबीर सिंह है। आप क्या मानते हैं इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं? चुनाव तो ऐसा है, पब्लिक का है, वोट देने का अधिकार है, चुनाव तो ये है। लेकिन जो है कि मुद्दा अगर जो पार्टी है अगर विकास के नाम पे मांगे, लेकिन विकास पैदा हुआ नहीं। लड़कियां जरूर पैदा हो गई, जीएसटी, नोटबंदी, फिर उसके बाद एमएससी मार्केट का जो है, लेकिन विकास फिर भी पैदा नहीं हुआ। ये मुद्दे इफेक्ट करेंगे ये चुनाव? मुद्दे इफेक्ट करेंगे कि जैसे कि मतलब अभी बेरोजगार है तो बेरोजगार क्या करेगा? बेरोजगार के पास कोई ऑप्शन है नहीं। वो अगर घर पे बैठा है, उसके पास काम नहीं है, महंगाई अड़ रही है, तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही। तो इसलिए यह है कि सरकार को चाहिए कि विकास के नाम पे और नौकरियों के नाम पे, नौजवानों को नौकरियों के नाम पे जो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियां हर साल की, वो करने चाहिए। जीतेंगे अच्छी बात। તો આ હતા સુરત અને નવસારી લોકસભા વિસ્તારના લોકો જે પોતપોતાના મંતવ્ય આપણી સમક્ષ મૂક્યો હતો અને આ ઇલેક્શનમાં કયા મુદ્દાઓ કારગર સાબિત થશે, કયા મુદ્દાઓ ફેલ હશે, એ તમામ મુદ્દાઓ સાથે આપણે વાત કરી હતી. સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત.